Thank you, everyone, for watching us here and also on YouTube and learning from us and making us a channel of universe to take this information from the universe. Believe it or not, we don't prepare. We just finalize the topic and we have some pointers, like we just note down some pointers. But all that analogy that we give, all that experience sharing that we do, it's all coming from somewhere from the universe. And even we are as equally learning as you are. So, with that introduction, please know that whatever answers you're going to get here, these are your answers. These are the answers that you have been looking for, that you might have asked sometime or the other in your life, and that is being delivered to you. All right. There is no conscious effort here involved. Everything is subconsciously delivered. With that, I'm going to introduce myself. My name is Soumya, and I'm the co-founder of Brain to Body Revolution. I'm a life engineer now, where we have we have learned how to fix our life. We have a lot of life tools. Supporting that, we have done a lot of studies. I've done food technology, I've done nutrition to support this cause, and now we are skilling up in neuroscience, brain mind connection, and stuff like that. With me is my beautiful co-partner, Supriya Nera, co-founder of Brain to Body as well, and a beautiful, most talented life engineer that I've ever met. She handles life so beautifully that it's still an art for her, and she puts me in awe every day as to how beautifully she handles her life and that of numerous others that go ringing, knocking her door. So together today we are here to present to you in continuation with the last week's topic, that is pranic power of food. Before I go ahead, Supriyadi, do you want to say one or two words? Yeah, thank you so much, Soumya, for such a beautiful introduction. So, guys, you know me and I know all of you. So, the thing is, we are all here in through this platform of Brain to Body Revolutions. We all meet, we all share our views on the various topics that we discuss here. As Soumya ने अभी बताया जैसा कि everything is coming from our heart and we do not want to, keep it confided with ourselves. It is always great to share with you guys and believe me or not that we always value you being here because हम जो बोलना चाहता है ना बोलने वाले को वैल्यू तभी मिलती है if there are listeners. So listeners are listening is the most important skill that one must have, and you guys are wonderful listeners. I must say that. And you guys continuously you are sending us messages and all because you are gaining that thing. So हाथ जोड़ के आप लोग सभी का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. मैं सुप्रिया, मैं एक लाइफ इंजीनियर हूँ. अर्लियर आई वाज एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी पहले, पर अपने लाइफ को करने के साथ साथ मैंने अब ये सोच लिया कि नाउ द लाइफ का पर्पस जो है मेरा इट हैज been completely changed for the last 5 years. I've been working on myself, and now it is time that I start delivering that to the people. So thank you so much for all that love that you keep on showering on us every day, taking out like every Friday, taking out 1 hour is not a joke. जो कि वीकेंड में सभी मौज मस्ती करते हैं वो करते हैं, बट आप सभी यहाँ पर आते हो सुनने के लिए हम लोगों को और अपने भी बातों को शेयर करते हो. सो वी वांट टू मेक इट 100% efficient for you guys. So let me just give it to Soumya. Soumya, please start today's topic and it will Yes. be so wonderful. You can make a note of it. बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में. So yeah, all to you, Soumya. Thank you, Dee. Thank you for that beautiful intro. Love you. Okay. So last week we were talking about pranic power of food. What is pranic? What is prana? What did you learn? People who were there in the last class? I feel like a teacher Life, right now. life force energy. Life. Namrata, A-star student. Yay. Yes, life force energy. Right? The one, the energy that is keeping you alive. Aren't the best way to experience this life force energy is जब आप घोड़े बेच के सोए हो मस्त रात में, है ना? लाइक 3 o'clock है, दो 2-3 o'clock इज कॉल्ड लाइक यू आर इन डीप स्लीप ऑफ, राइट? उस टाइम जब कोई आपको कुछ आवाज आता है या कुछ गिरता है, कुछ होता है, एंड देन यू सिट अप लाइक दिस, समथिंग वोक यू अप, राइट? Maybe something that is not dropped. Even if somebody comes and stands right next to you without touching you, you become aware of it, है ना? या फिर आप स्लाइट नैप ले रहे हो आफ्टर, ये बहुत लोगों को होता है डीप स्लीप का. बहुत रेयरली फ्यू पीपल, समबडी हु इज अ ह्यूज मेडिटेटर ना, उनको थोड़ा ये अवेयरनेस होता है. सपोज यू आर स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, आपको हल्की सी, यू हैव क्लोज्ड योर आइज एंड यू स्लीपिंग एंड समबडी कम्स एंड स्टैंड्स नेक्स्ट टू एंड यू सडनली वेक अप. व्हाट इज दैट? यू वेर तो स्लीपिंग ना. What is that thing that made you feel like something is there out? That is prana. That is life force energy. And we did a small exercise as well, right? Last time we saw that you have that
energy body within you. That is the physical form of that life force energy. To if you want to see how you are a life force energy, you do just that. So you'll feel that energy within you. Of someone who is a meditator, I can already feel it. I don't even have to activate my chakra, that I can already feel the energy. This was not like this before. When I was very little, I could not, but now I can really feel. So as and when you start meditating seriously, start becoming conscious, people who think ki meditation is like sitting at one place for hours together and closing your eyes and all that, that is one form of meditation. There are numerous forms. If you're so lost in doing the work that you're doing, that is also a meditation. Like आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे समय जा रहा है, that is also meditation. Okay, you're cooking, you're chopping, you're so lost. ऐसे हुआ है कभी? मेरे साथ तो बहुत होता है. Raise your hands if I'm so lost in doing what I'm doing. If somebody comes up, I'm like, I just jump. Like literally, my soul jumps out of me, and that's why people are very careful when they come towards me, because knife wife है ना, कभी छोड़ दिया तो कुछ लगा दूंगी ऐसे बोल के. So this is how even these days. Oh, thank you, Bhati Sharma ji. These days I'm feeling it in texting. I was just sharing this with BTG also. Ki when I'm texting someone, I'm so lost in, because we are texting, we are channeling universe again, because there will be questions like, I'm feeling like this, I'm not feeling so good. What do I take? Do I take this? Do I take that? And we are replying, and we have to channel universe even that time. So we have to channel universe minute by minute basis, right? So I have seen myself, I'm going to alpha state of mind, and my body is jerking when I'm typing. So this is the state you want to get at. And when you reach this state of awareness that there is a life force within you, you will see that you will thrive differently. Things that you affect you don't longer affect you anymore. जैसे कि दीदी explain कर रहे थे last time, है ना? Whenever you're feeling low, why do you think you go to a packets of chips or chocolate and all that? Because of frequency and vibration. Am I right? We are all here. यहाँ पे जो कोई भी है, उनको थोड़ा तो थोड़ा ज्ञान है ही कि हम सब एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है. जो लोग नए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जस्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली क्या होता है. आप एटम्स से बने हो, है ना? सबको इतना तो फिजिक्स पता है कि हम सब लोग एटम से बने हैं, राइट? अगर एंड वी ऑल नो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट नथिंग इज स्टेबल, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. इफ यू आर एटम, देन यू आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग. एम आई राइट? इफ यू आर वाइब्रेटिंग, देन देर इज अ फ्रीक्वेंसी अटैच टू इट, मीनिंग उसका एक नॉइज है. इफ यू वॉन्ट टू विजुअलाइज इट इन अ वे, उसका एक नॉइज पैटर्न है, ठीक है? जैसे कि मेरा एक नॉइस पैटर्न है, सुप्रिया दीदी का एक नॉइस पैटर्न है, पल्लवी, मुझको यहाँ पे 4 लोग दिख रहे हैं. पल्लवी दिख रहे हैं, अनु दिख रहे हैं, आरती दिख रहे हैं, बीटी जी दिख रहे हैं और लीलावती दिख रहे हैं. तो आप सभी का ना डिफरेंट पैटर्न होता है. जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट होता है ना, प्रिंट होता है ना, वैसे ही आपका भी एक फ्रीक्वेंसी होता है. जैसे आपका फिंगरप्रिंट फिक्स्ड है, ये आपका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं है. यू कैन चेंज दिस फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन हाउ वॉट यू फील. ठीक है? And the things that are coming to you depends on this frequency you are in. ठीक है? To whoever who has studied physics, है ना, हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे. ट्यूनिंग फोर्क करके मिलता है. आई विश आई कुड हैव फाउंड दैट रील फॉर यू गाइस. एक ट्यूनिंग फोर्क होता है. ट्यूनिंग फोर्क बोले तो एक फोर्क 3 फोर्क का होता है ना, ये फिजिक्स वाला 2 फोर्क रहता है, ऐसे रहता है. और इसका वो एक स्टिक रहता है ऐसे, है ना, ऐसे स्टिक रहता है. वो उसका एक वाई फ्रीक्वेंसी. फॉर्म का, हाँ, सॉरी. वाई जैसा, वाई हाँ, जैसा। वाई जैसा, वाई जैसा, यस दीदी, थैंक यू. वाई जैसा होता है, और उसका एक साउंड होता है, उसको हम एक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है? सपोज उसका नॉइज का फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्स, 420 हर्ट्स है समझो. अगर आप दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क लेते हो, उसको मारते हो, सपोज वो 50 हर्ट्स का है, 50 हर्ट्स का है, तो उसको सामने लेके आते हो, तो ये ट्यूनिंग फोर्क हिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है. आप 100 लेके आओ, फिर भी नहीं हिलता है. आप 500 भी लेके आओ, नहीं हिलता है. ओनली वेन यू ब्रिंग 420 वाला फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क, उसको मार के आप जब इसके पास लेके आते हो, इमीडिएटली दिस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. दिस इज द वे योर होल लाइफ इज ऑपरेटिंग. अगर आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं, इसका एक ही मतलब है, आप गलत, मीन दैट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में हो. समझ में आ गया? सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर. हाउ यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ, हाउ यू आर अट्रैक्टिंग सर्टन फूड्स इन योर लाइफ. बार बार मेरे को इन्वाइट्स आते हैं, बार बार मेरे को पिज्जा पार्टी आता है, बार बार मेरे को बर्थडे पार्टीज आते हैं. क्यों आता है ये? है ना? वाई? मेरे को चाय ये करना दूर करना नहीं आता है, क्यों?
all this, there's a simple logic to it. ठीक है, that is what we are going to understand today. Today's will be a really quick one because it is really numbers and you will get the idea immediately. जैसे मैं आपको presentation दिखाऊंगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि what we are trying to teach you. ठीक है, so with that let me share my screen. Let me pull up. Okay. Okay, can you see my screen? Visible? Okay, Yes, thank you, Deep. yes. Thank you. So we are going to interlink the frequency of foods with your emotion and health. Okay, get ready. One of the biggest pioneers of in energy in our lifetime is not actually Einstein ने E is equals to mc square दे दिया था, but someone who has deeply understood energy is Nikola Tesla. Do not confuse him for that electric motor vehicle. It is, we need to thank Elon Musk for naming that vehicle as Tesla, but he had nowhere to do anything with that vehicle that we have today. He was the person who actually found electricity, although Edison took the credit for it. But then again, he's now a very celebrated scientist in our generation, so his due credit is now complete. उन्होंने बोला है, if you want to find secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. अगर आपको यूनिवर्स, आपकी ये जो लाइफ है, आप क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाले हो, ये ब्रह्मांड कैसे है, ये सोलर सिस्टम क्यों ऐसा है, इतने सारे स्टार्स क्यों हैं, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड जो भी है यहाँ पे, देन यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. तभी जाके आपको आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट लाई, आई एम अ लिविंग प्रूफ. मैं आई एबहॉर्ड, मुझको फिजिक्स बोले तो यहाँ तक आता था. आई कुड नॉट डाइजेस्ट फिजिक्स. आई यूज्ड टू से फिजिक्स इज अ मेक बिलीव सब्जेक्ट. इफ द फोर्स इज एन, आई एम लाइक क्यों भाई, क्यों चुपचाप पड़ा है ना उधर, वाई डू यू वॉन्ट टू पुश इट, वाई डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फोर्स ऑफ एन न्यूटन, चुपचाप पड़ा है उसको उधर ही छोड़ो. दैट इज हाउ आई यूज टू टॉक अबाउट फिजिक्स, यू नो, आई यूज टू नॉट लाइक इट. बट नाउ दैट आई रियली, I finally understand E is equals to mc square. You know, I just wrote it in the answer paper. तब मैं क्या दिख रही थी ने. I now really understand relativity. I now really understand E is equal to mc square. I can really talk to you for days together on just E is equals to mc square because that is so beautiful. So if you really want to understand universe, think of everything as energy, frequency and vibration. And we do this in brain to body. Every day, every morning, we make you energy bodies. Am I right? Everybody here who is there, just raise your hand. We make them see them as an energy ball. उनका physical form में हम strip कर देते हैं. We just strip out all the physical form. We just keep their energy bodies. We make them see as a light source. What is light? Light is energy again. So we make them see the light. And when you are just light and energy, you have no problems in your life. Absolutely no problems. And then you can change. You can change your frequency. You can change your energy and you're a different person altogether. It is as that simple. Here, every food, every emotion, every organ emits a measurable frequency. ये frequency को measure करने का एक तरीका है hertz. ठीक है, we'll not get into mathematical formula of it. This fundamental principle reveals how your choices directly impact your well-being through vibrational alignment. आप नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल साफ साफ देखोगे कि आपके वाइब्रेशंस के हिसाब से आप कैसे खाना खा रहे हो. ठीक है, जस्ट रिमेंबर, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स जो वाइटैलिटी के होंगे, जो लव का होगा, जो हीलिंग एनर्जी होंगे, जो आपके एंटायर बीइंग को एलिवेट करेगा, ऊपर लेके आएगा, वो चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी होती है. जो डिजीज है, आपका जो डर है, जो हैवीनेस है, जो भी है आपके लाइफ में, जो खींचता है वो नीचे आपको, वो लो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, सो पीपल हु से, ओ आई डिड नॉट थिंक ऑफ दिस, सपोज एक्सीडेंट हुआ है एंड दे आर लाइक, ओ आई डिड नॉट थिंक ऑफ दिस एक्सीडेंट, यू नो, आपको फियर था. हम सभी को एक्सीडेंट का फियर है. एम आई राइट? एक बार तो ख्याल आता है व्हेन यू आर टेकिंग द व्हीकल आउट ऑफ योर होम. एक बार तो ख्याल आता है, ठोक दिया तो किसी ने, गिर गई तो मैं, एक बार तो आता है. एम आई राइट? बट समवन हु इज फियरिंग इट, समवन हु इज फियरिंग इट मीन्स यकीन के साथ, मेरे साथ होगा ही होगा, मेरे साथ होगा ही होगा, आज वो टायर ना ठीक नहीं है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, रोड स्लिपरी है, बारिश हो गया है, मैं तो गिरूंगी, मैं तो गिरूंगी. वो जो ये जो थॉट है, ये जो ये फियर है, इसके वजह से वो होता है. So if you have fear about anything in your life, it is going to manifest, and it is going to manifest faster than your biggest dreams. Because fear is, you feel the fear like you feel all senses. जब आपके पांचों के पांचों सेंसेस इन्वॉल्व है, तो वो मैनिफेस्टेशन 10 गुना ज्यादा हो जाता है. जब when you're fearing of accident, what is feeling? You're
यू आर थिंकिंग, यू आर फीलिंग दैट ओके मैं स्लिप होके गिर रही हूँ, मेरे को चोट लग रही है, मेरे को खून आ रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, यू आर फीलिंग ऑल ऑफ दिस, राइट, वेयर ऑल ऑफ द सेंसेस आर इन्वॉल्व, सो इट विल हैपन फास्टर. This is to give you an example. Okay, now coming to the food part, let us see how different food have frequency which is measured, it is experimentally measured. Okay, and how it correlates with your frequency. Ready? Here you go. ठीक है. See, if you are eating fresh fruits and vegetable, उसका frequency है 70 to 90. ठीक है, make sense? ठीक है. Sprouts and green juices, it is 80 to 120. Can anybody say me why sprouts and green juices are 80 to 120? कोई आइडिया है? नहीं? ओके. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ऑलरेडी पक्का हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्लांट है. एम आई राइट? एम आई राइट? फ्लावर उगता है, फ्लावर उगने के बाद पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने के बाद सीड होता है, सीड ग्रो होते होते फ्रूट बनता है, राइट? either it becomes a fruit or it becomes a vegetable. ठीक है. whereas your sprouts में लाइफ फोर्स लाइव है, यानी कि that seed thinks it's going to grow and become a plant. It is alive, right? That's why its frequency is 80 to 120. Why green juices is high? Green juices क्या होते हैं? पत्ते होते हैं. पत्ते में क्या होता है? Life force, because it is converting your carbon dioxide into oxygen, right? It is a living thing. So when you have sprouts and green juices, you are consuming the highest frequency. Okay. Additionally to that, seeds and plants absorb what? Sunlight. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वी आर सनलाइट, वी आर बायोफोटोनिक पीपल. हम फूड भी खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? हम सनलाइट खा रहे हैं. एम आई राइट? जितना वो कुक होगा उतना आपका सनलाइट का शक्ति उसमें कम रहेगा. बट स्प्राउट्स एंड ग्रीन जूसेस हैव हाईएस्ट रिटेंशन ऑफ सनलाइट, बिकॉज द सीड इज थिंकिंग ओ आई एम गोइंग टू ग्रो एंड बिकम अ बिग प्लांट. उसका ड्रीम है वो बड़ा प्लांट बनेगा और हम खा रहे हैं उसको. इट्स वेरी सैड दो. मे बी माई जोक्स आर फॉलिंग फ्लैट. एनीवे, ग्रीन जूसेस अगेन प्लांट है, लीफ है, absorbing sunlight है ना. Am I right? So that's why the frequency is high. Nuts and seeds 50 to 70. Again, if you prepare them properly, it can raise even higher. Why? Again, nuts and seeds are what? Again, they are seeds only. है ना? Seeds are seeds. Nuts तो again they are end product. वो nuts से ही you can grow. Almond का nut you can grow into tree. है ना? Chia seeds you can grow into tree. Small herbs. Am I right? So even if you prepare them nicely, means if you soak them, if it is raw, it is 50. Can you see that? Raw is 50, soaked is 70. डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? पानी में शक्ति है. 45 to 60 is your whole grains, millet, brown rice, sustained energy. ठीक है, बिकॉज इसको हम कैसे खाते हैं? वी आइदर ग्राउंड इट इनटू फ्लावर और वी डायरेक्टली कुक इट. कुक्ड फॉर्म में ही खाते ना, कच्चा तो नहीं खाते कोई, है ना. दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज 45 to 60. ठीक है. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल्स. किन किन लोगों को, हु ऑल लाइक्स दैट टॉपिंग ऑन द पिज्जा? ओ ओरेगानो. ओरेगानो डालने का किस किस को बिना ओरेगानो यू कांट हैंडल इट. कैन आई गेट अ रेज हैंड? आई तो लव दैट. यस, थैंक यू आरती वारिया जी, थैंक यू. हाई फाइव. यस. So your herbs and essential oils, Bhati Sharma ji, thank you. So that has high frequency, 300 to 500 hertz. ओके. यहाँ पे तो स्पेसिफिकली वो बोला है रोज ऑयल एंड बेसिल. बेसिल जो प्लांट है वो तुलसी. वाई तुलसी इज आवर होली प्लांट? नाउ इज इट मेकिंग सेंस टू यू वाई तुलसी वी कंसिडर एज होली? देखो उसका फ्रीक्वेंसी देखो, 300 to 500. जस्ट इमेजिन इट इज स्टेइंग इन योर हाउस, it is vibrating at 300 500 hertz. Am I right? And have you seen if death happens in the house, tulsi is the first plant that is going to die. It is spiritually linked. We pay attention to people who have death in their house. The tulsi plant is kind of down a little. That is a key. Okay. Then comes here processed foods. Canned and processed foods drop to 15 hertz. 15 hertz पे आते हैं. While fast food reaches 0 hertz, truly dead food. Now start connecting. ठीक है, next slide we will connect it even more. ठीक है, तो यहाँ पे main takeaway क्या है? Food with sunlight and freshness carries the highest frequency, directly transferring their vitality to us.
This you need to remember. If somebody asks you, why do you eat salad so much, why do you eat fresh juices so much, why do you drink juices, why do you eat fruits so much, this should be your right answer, not that, oh, it is healthy. Healthy wealthy kuch nahi hota hai. Ye hota hai. This energy transfer is what you are asking for. You just say it is source of sunlight and I'm sunlight being. That you may not tell that to them, but that is what should run in your mind. Do not categorize anything as unhealthy or healthy. Just think of it from its pranic value. It will become easier for you to make that change in your life. Am I making sense to you guys? Because you telling it as healthy and unhealthy, it is like saying something is good or bad. There's nothing really good or bad in this world. What is good for you is bad for someone else, and what is bad for someone else is good for you. Am I right? You may think, oh, I want to live in a 5-star hotel. Living in 5-star hotel is a really good thing. बट वही जाके आप कोई रोड पे होमलेस है, उसको वो बोलेगा, अरे यहाँ पे मेरा घर होता था, इन्होंने हटा के यहाँ पे लग्जरी होटल बना दिया, उसके लिए तो वो बुरा ही है ना. So there is no really good or bad in this world. So categorizing anything as healthy, unhealthy, you're doing this. You're categorizing it as good and bad. So just stop doing it from today for your own health and well-being, right? If you do not want to get categorized as good or bad, you stop categorizing others as good or bad. ठीक है. सो ऑल यू हैव टू थिंक इज, ओके, ये जमीन के ऊपर उगता है, इससे मुझको एनर्जी मिल रहा है तो मैं खा रही हूँ. ये फैक्ट्री में बन रहा है, इसका पूरा जान स्ट्रिप आउट हो चुका है बिकॉज प्रोसेसिंग में पूरा घिस जाता है. जस्ट इमेजिन if we put you in a plastic bag, how will you feel? Suffocated. Am I right? Am I right? If I put, so just imagine वो मैगी का पैकेट में वो जो मैगी पड़ा है अंदर, वो मैदा है, वो भी एक ग्रेन था कभी ना कभी, है ना. It is feeling suffocated. It is dead only. And what is the shelf life of them? Years together, है ना. Years together का shelf life होता है. Making sense? Can you connect the dot? It is very important you start connecting the dots in your head. ठीक है. Now let's see from this perspective. This is your frequencies for your emotions. See, again, Dr. David Hawkins' scale of consciousness. These are all scientific. लोगों ने पढ़ाई कर, they are doing it now more actively. These are basic studies. Okay. See, processed food का frequency कितना है? 15 hertz. पढ़ा है अभी? Less than 15 hertz or up to 15 hertz. Am I right? Right. Shame is at what? 20 hertz. Guilt is at what? 30 hertz. Fear is at what? 100 hertz. ठीक है. Let's just take shame and guilt because it is very easy for me to give example. If you are eating, if you're feeling shameful of your body and you're eating a packet of chips, does it match now? Why do you think you like that packet of chips? If you like that packet of chips and you identify yourself as someone who is obese, makes sense? Because you are at 15 hertz, 20 hertz, packet of chips, 15 hertz roughly. You have attracted whatever Didi said last class. This is the scientific proof of it. ठीक है. गिल्ट में तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. Am I right? गिल्ट में बहुत सारे लोग हैं. Again, what do you feel? You feel like eating fast food, or you feel like eating processed food, feel like eating chocolates, feel like eating. कहाँ आते हैं? 30 hertz में ही आते हैं. समझ में आ रहा है? So if you let go of shame and guilt, automatically your frequency will rise, and automatically you will start reaching out to those things will come. ठीक है. Here, love 500 hertz, joy 540 hertz, peace 600 hertz, enlightenment 700 hertz plus. So just imagine the kind of so only when you are in this frequency can you reach out to fresh fruits and vegetables. Am I right? Because unka hi energy utna hai. When you eat multiple things of that, then only you will be able to match up to that hertz. Sahi hai na? Connect ho raha hai? Yes. See here. We have seen 70 to 90, 80 to 120 hertz. So when you are eating sprouts, सुबह भी खा रहे हो green juice, green वाला सब्जी खा रहे हो, green juice पी रहे हो, like it will add up, right? So throughout the day, you are maintaining that hertz. Make sense? Okay. The emotions we eat with our food matter as much as the food itself. Blessing food raises its frequency significantly. अभी जो मैम या जो हम सीख रहे हैं ना कि bless your food, है ना, इससे क्या होता है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी के अगर आपने you have cooked your food बोले तो नीचे चला गया, right? It has gone down to 20 hertz. Now you have to raise its frequency.
Am I right? You have to raise its frequency. What you're going to do? You're going to raise your frequency by doing a blessing on it. You're going to shower love on it. So आपका 500 hertz, आप emitting love on it. Thank you. Oh my God, I love this plate of food. आपका energy, आपका hertz हो गया 500. तो उसका थोड़ा उसके उधर transmit हो जाता है. Because energy is transferable, right? Goes from here to here. So you are going to elevate your energies and then you're going to eat that food. More on that, Didi will take over. I'll hand it over to her. Didi, you want to talk about this frequency of health and diseases? Yeah, sure. Thank you so much, Soumya, for such a lovely insight. Yeah. So guys, now we know. अब सबसे पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी अपनी रेज करनी या अपना जो भी हम लोग खाना खाते हैं हमारी हायर प्राणिक वैल्यू को रेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। प्राणिक वैल्यू को रेज करने के लिए आप एक समझ सकते हो, एक लाइट सोर्स है आपके पास, है ना, लाइट है। वो लाइट जब है आपकी पूरी वोल्टेज आती, जैसे हम लोग इंडिया में है तो हम लोगों को कई बार ना, जैसे बाहर में तो फिर भी कांस्टेंट कांस्टेंट एनर्जी के साथ आती है लाइट, तो वहां पर इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। तो कभी जब फ्लक्चुएशन होती है, कोई कभी कभी ऑफलोडिंग हो जाती है इसकी, तो आपने देखा होगा लाइट का जब वोल्टेज कम आ रहा है तो बिल्कुल बत्ती जो है ना उसकी कम हो जाती है ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है। और इंटेंसिटी जब कम होगी उसकी तो फ्लिकर करने लग पड़ता है, वो क्यों ऐसे 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 फ्लिकर करने लग पड़ता है। वाई इट हैपेंस इज बिकॉज पहले उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, वो पूरा का पूरा लाइट एनर्जी सोर्स जो है पूरा इनलाइटेंड था। उसके बाद जब हमने उसमें वोल्टेज कम दिया, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, उसमें कम हर्ट्स, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। जैसे हम लोग सेंटीमीटर में हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, हम लोग जैसे कि हाइट को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर या इंचेस में करते हैं, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हर्ट्स होता है हमारा यूनिट। दैट इज द यूनिट। सो आपके बल्ब के अंदर अगर पीछे से वोल्टेज कम आ रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई लो, आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। जब एनर्जी कम हो गई तो आप फ्लिकर करने लग पड़े। तो लाइट की तरह ही हमारी बॉडी भी हाई फ्रीक्वेंसी में जब होंगे हम लोग बहुत हेल्दी नजर आएंगे, सबको लगेगा कि वाओ दिस गर्ल इज सो मच एनर्जेटिक, है ना। वी विल बी टॉकिंग एनर्जेटिक थिंग्स, हम लोग एनर्जी के साथ काम करेंगे, सारा का सारा दिन हाई एनर्जी एंड वाइटैलिटी में रहेंगे। दैट इज द बेस्ट ऑफ हेल्थ एक्चुअली। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो उसका मतलब क्या, हायर प्राणिक वैल्यू आपकी होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, आपके प्राणा क्या होगे, हाई होगे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर क्या है, आप रेजोनेट करोगे, आपके पास खाना भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का आप खाना चाहोगे, अपने आप ही आपका मन करेगा ही नहीं कि मैं उस दूसरी और चीज के पास जाऊं। सो द थिंग इज, आपको इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे जब हमारी फ्रीक्वेंसी लो हुई, अब जब बत्ती में पूरा का पूरा पावर नहीं आया, है ना, लाइट एनर्जी जब पूरा का पूरा पावर नहीं आया, तब क्या हुआ, वो फिर लो हो गई फ्रीक्वेंसी उसकी, ये डिम हो गया, वो डिम हो गई फ्रीक्वेंसी। सो क्या हो गया, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो गई। अब लो फ्रीक्वेंसी जब आपकी हो गई तब आप फ्लिकर करने लग पड़े, फ्लिकर करने लग पड़े। फ्लिकर जब आप करोगे आपकी बत्ती बुझ भी जाएगी। So the same way, when you are vibrating in the higher energy, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया। ऑरा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो गया तो आपकी वेदर कंडीशन, मान लो उल्टा पुल्टा वेदर कंडीशन अभी है, कभी सर्दी हो रही है कभी जुकाम हो रही है, लेकिन आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, सो बैक्टीरियाज विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ इंट्रूड योर बॉडी, क्योंकि आपने अपना ऑरा को क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सो दिस इज हाउ कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तब आप क्या करोगे, तब आप बीमारियों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जिनकी भी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसा खाना अपने आप ही आपके पास आएगा जो आप हाई फ्रीक्वेंसी होगा। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ रेजोनेंस, जिसके बारे में सौम्या ने अभी बताया, वो ट्यूनिंग फॉर्क वाला एग्जांपल दिया था ना। जौन सी फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपको, आप जो है वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर बता रखा है, ह्यूमन बॉडी का, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 62 to 72 हर्ट्ज। ठीक है, 62 to 72 हर्ट्ज जब उसकी फ्रीक्वेंसी, आप लोग को पता होगा जो हमारा हार्ट बीट है, नॉर्मल इंसान का जो हमारा जो पल्स होता है ना, पल्स, वो भी 60 to 70 जो है उसको सही माना जाता है कि हाँ आपकी जो है, दिस इज अ हेल्दी बॉडी व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग एट द रेट ऑफ 70 beats per minute। सो दिस इज अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जब इंटेंसिटी लो होगी, जब उसके प्राणा लो होंगे, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, आपने कुछ ऐसा खाना खाया है या आपके अंदर कुछ ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं ना, कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर शारीरिक तौर पर आपने ओवर वर्कअप कर लिया, आप टायर्ड हो रहे हो, तब क्या हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई लो, है ना। फ्रीक्वेंसी आपकी जब लो होगी तो आपको कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 58 यानी 58। गॉट इट। सो व्हेन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट ऑरा आपके चारों तरफ में, सो दैट यू स्टे हेल्दी एंड यू वाइब्रेट इन गुड हेल्थ एंड गुड फ्रीक्वेंसी।
नहीं तो फिर आपको कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स आने लग पड़ते हैं। ये कैंडिडा और यीस्ट का इन्फेक्शन जो है, कई बार आपने देखा है ना, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फिर हमारे स्किन के अंदर इन्फेक्ट खुजली हो जाती है, ये सब कुछ हो जाते हैं। इवन हमारे जो जेनाइटल्स होते हैं वहां पर भी बहुत बार कैंडिडा के इन्फेक्शन हो जाते हैं। वाई अगेन वाई? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना इतनी ज्यादा पूरी तरह से इक्विप्ड है हर तरह की बीमारी को लड़ने के लिए, लेकिन उसके अंदर प्राण तो हम लोगों को डालने हैं ना। जब तक हमने प्राण उसके अंदर अच्छे से नहीं डाला, हमने अच्छी चीजों को कंज्यूम नहीं किया, हमने मेडिटेशन करने से भी आपकी प्राणिक वैल्यू बहुत हाई होती है, आपकी जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं ना वो अलाइंड होते हैं और वो अनब्लॉक होते हैं। तो अगर वो अनब्लॉक्ड हो गए आपके आपके जितने भी सातों के सातों चक्रा है वो अलाइनमेंट में है, उनमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, तो क्या हुआ? अगेन आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो गया। ऑरा आपका स्ट्रांग हो गया तो आपके अंदर बीमारी किसी भी तरह की नहीं आएगी। कैंसर जैसे, आप कैंसर कब होता है किसी इंसान को आपको पता है? ऐसे बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में ये ऐसा बोला जाता है कि कैंसर के लिए हमारी बॉडी के 7 तरह के ताले जब टूट जाते हैं तब जाके बॉडी में ये कैंसर आता है ना। 7 तरह के तौले, मतलब एक लेयर टूटा, दूसरा इम्यूनिटी बैरियर टूटा, तीसरा टूटा, ऐसे करते करते 7 जब बैरियर्स टूट जाते हैं तब ये बीमारी आती है। अगेन आप अगर अपने एक्टिविटीज को ठीक रखो, है ना, गुड फूड, हाई फ्रिक्वेंसी वाले, हाई प्राणिक वैल्यू वाले खाना को खाओ, है ना, ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग्स करो। जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? हम लोग अगेन ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, हमारे सेल्स के अंदर हम लोग ऑक्सीजन डाल रहे हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड के साथ खाना को कंज्यूम कर रहे हैं, या वी आर, हम लोग ग्रैटिट्यूड के हम लोग सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स तो हैं ही। जब हम वो सब करते हैं ना तब हमारी प्राणिक वैल्यू भी और भी ज्यादा हाई हो जाती है। वी आर रिवर्बरेटिंग इन द हायर फ्रीक्वेंसी, देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट दैट दीज काइंड ऑफ डिजीजेस विल कम टू अस, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को वॉच करते रहे हमेशा। वी हैव शेयर्ड फीलिंग फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए, जैसे सौम्या ने भी बताया, शेम की फ्रीक्वेंसी, गिल्ट की फ्रीक्वेंसी, ये सब फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। आपको अपने आप को एलिवेट करने के लिए क्या करना होगा ना, एक तो अपने थॉट्स को चेंज करो, है ना। जैसे ही आपने थॉट को चेंज किया, एवरीथिंग आपका जो थॉट है उसका भी एनर्जी होता है, जैसे बताया है ना। इमोशंस, आपका लव वाला इमोशंस है, उसकी 700 मेगाहर्ट्ज की एनर्जी है। आपका ग्रैटिट्यूड का जो है उसके 530 मेगाहर्ट्ज के आसपास एनर्जी है। तो आपने ग्रैटिट्यूड करके, प्यार को करके, आपने जब अपनी एनर्जी को रेज किया तो आपकी इम्यूनिटी हो गई स्ट्रांग। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो आपका प्राणिक वैल्यू अपने आप ही बढ़ गया। अब प्राणिक वैल्यू बढ़ गया तो यू हैव गॉट एवरी टूल टू फाइट एनी काइंड ऑफ डिजीज। तभी तो हम लोग कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड हैज ऑल द सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने अपनी प्राणिक वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। और बढ़ाना क्यों जरूरी है आपको पता ही है? अपना ऑरा को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि कुछ भी ऐसी परिस्थिति में हम लोग फ्लिकर ना करें, हमारी बत्ती ना बुझे। इस कारण से हम लोगों को अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखनी चाहिए। अब डेथ का पता रखा है कि डेथ का प्रोसेस जब शुरू होता है, कब डेथ का प्रोसेस शुरू होता है? डेथ इतना आसान नहीं होता है। मेरी फ्रेंड है बहुत प्यारी, वो यहाँ पर भी है, तो वो उन्होंने मुझे एक बार बताया था, तब मुझे समझ में नहीं आया था क्या बात है। उन्होंने बताया था कि जब भी कोई इंसान की डेथ होती है ना, तो ऐसा फील होता है उस इंसान को जैसे कि कॉटन का क्लॉथ है, वो किसी झाड़ी में फंस गया हो, और जब हम उसको खींचते हैं कितना ज्यादा वो कपड़ा जो चर 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 करके फट जाता है। तो दैट काइंड ऑफ पेन इज गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर जोन, उस समय पे उतना दर्द होता है किसी भी शरीर को। तो इसका तात्पर्य हम साइंटिफिक में कैसे निकाल सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक ऑर्गन सिस्टम शट 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 होता रहता है, तभी डेथ एक्सपीरियंस होता है। सो दैट इज अ 25 हर्ट्ज, कितना कम उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि प्राणा तो उसमें है ही नहीं, माँ नाम मात्र का प्राणा है। जितना 25 हर्ट्ज आपको नजर आ रहा है वो भी इसलिए है क्योंकि डेथ के बाद भी ना हमारे अंदर थोड़ा सा प्रोटीन रह जाता है, जो कैरेटिन प्रोटीन वगैरह है ना, वो थोड़ी देर के लिए अपना रह जाता है, ऑलमोस्ट एक दिन के लिए। तो क्या होता है, अगर बॉडी रहती है तो आपके हेयर जो है वो ग्रो करते हैं उस उतने से समय के लिए। सो इट इज ओनली द रेसिडुअल थिंग बिकॉज ऑफ विच दिस एनर्जी इज देयर 25 हर्ट्ज की। तो दिस इज व्हाट कि हमारी एनर्जी हमारे लाइफ फोर्स को बता रही है। एवरी टाइम यू आर कंज्यूमिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स, तो आप सोचो कि आपकी एनर्जी, आप बहुत खुश हो, खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, आप खुशी के कारण आपने वो जो चिप्स का पैकेट लिया है, आपने एम्प्टी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर लिया। वो हाई थी लेकिन आपने क्या कर लिया, कम कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि क्या कर रही हूं मैं अपने साथ, मेरा ऑरा तब क्या हो गया। अब मेरा ऑरा का जो वो लेयर है ना, जैसे कि ओजोन लेयर में भी छेद हो रहे हैं ना, उस ओजोन लेयर में छेद के कारण जो है वो यूवी रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। वो एटमॉस्फेयर में हमने ओवर यूज ऑफ करने के ना, CCl4 वगैरह ज्यादा यूज कर करके हमने ओजोन लेयर पे छेद कर दिया है। तो इसी तरीके से जब हम इन तरह के लो प्राणिक फूड को खाते हैं, या फिर प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड को खाते हैं, पैकेट में से निकाल कर सीधा सीधा खाते हैं, तो हम उसी तरह का छेद अपने ऑरा में कर देते हैं। और उन छेद से, जैसे कि यूवी रेडिएशन आके हम लोगों को कैंसर जैसी चीजें करते हैं, तो उन छेदों से कौन आता है? उन छेदों से आते हैं बैक्टीरियाज, हमारे स्किन इन्फेक्शन करने के लिए,
फ्लू जैसे सिम्टम्स करने के लिए। तो बॉडी इतनी ज्यादा वेल इक्विप्ड है, लेकिन फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी तो है, उस फ्रीक्वेंसी को वो आके हिंडर कर देता है, तभी भी फॉल इल, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर वाइब्रेटिंग इन। सो नेक्स्ट इज सौम्या, अगला करो। या सो व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग, जब हम लोग, जो अब देखोगे ना अपनी बॉडी के अंदर, जो हाई प्राणिक फूड है, हाई प्राणिक फूड और जो ग्रैटिट्यूड के अंदर आप खाना आप खा रहे हो, ऐसे वाला खाना खा रहे हो, जैसे हमने बताया था हाई प्राणिक फूड कौन से होते हैं, जिनमें सनलाइट का एक्सपोजर सबसे ज्यादा होगा। सनलाइट इज द पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट के अंदर एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो हमने हाई प्राणिक फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं और उस पर भी ग्रैटिट्यूड और लव का तड़का जब मार देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे लाइफ में अबंडेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली आएगा। क्योंकि एक तो हम हाई एनर्जी में हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि हम लोग ग्रैटिट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, 580 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी ऑलरेडी है। फिर उसके ऊपर से हमने मान लीजिए फ्रेश फ्रूट खाया, वो 70 से 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहां पर होगी, या हमने स्प्राउट्स खाए, उसकी एनर्जी बहुत हाई है, वो वाला लिया, या हमने मेडिटेट करके अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर लिया, तो हमारी एनर्जी क्या हाई हो गई, बिल्कुल यूनिवर्स के बराबर की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यूनिवर्स के बराबर की फ्रीक्वेंसी जब हमारी हो गई, तो हमारी जो भी चीजें हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत आसानी से हमारे पास आ जाएंगी। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, दैट दिस थिंग हैज टू बी डन, right? So whenever you are following these kind of things, always remember that we have to go for the high vibrational food, high vibrational energy, right? So this is very important again. And what happens when you are taking junk food? जंक फूड जो होता है उसमें बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रेजर्वेटिव्स जब ज्यादा हुए, जब जंक फूड हम लोग खाते हैं, तो वो उसका प्राणिक वैल्यू क्या हो गया, लो हो गया। अब लो प्राणिक वैल्यू हो गया, लो एनर्जी वाला फूड हमने खा लिया, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, पहले ही हम लोग स्ट्रेस में थे, हमने वो चिप्स का पैकेट उठाया खाया, एनर्जी क्या हो गई, और भी डाउन हो गई। तो फिर हमारे हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हार्ट को जब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर तो वैसे ही हाई हो जाएगा। कनेक्टिंग द डॉट्स नाउ, समझ पा रहे हो ना आप चीज को, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे जो ऑरा के अंदर ये छेद होल्स हम लोग करते जा रहे हैं, अपने प्रैक्टिसेस के कारण, जो हमारा हमारे इल मैल प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली ये, कि व्हेन वी आर काइंड ऑफ अब्यूजिंग आवर बॉडी टू, वाइल द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाई, जो प्राणिक फूड है, अगर वो ज्यादा होंगे, तो हमारे हमेशा हम लोग काम रहेंगे, शांत रहेंगे। आपने देखा होगा ना, जो भी हाई प्राणिक फूड खाते हैं, जो ग्रैटिट्यूड के जोन में रहते हैं, उनके मन में ना एक अलग से आपको लगेगा कि कितनी शांति है उसके पास, है ना। उनको ऐसा लगेगा हमेशा ही एनर्जेटिक रहती है, कि रात के 10 बजे भी आप उनको देखोगे ना, वो एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हाई फूड पर कॉन्सेंट्रेट किया, हाई फ्रीक्वेंसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो फिर बीमारियां आती ही नहीं है। आज ही मैं हिसाब किताब लगा रही थी इस बात का, कि मुझे कितने दिन हो गए मेडिटेट करते हुए सुबह सुबह, है ना। तो हम लोगों को, मैं अपना अगर मैं बताऊं, तो मुझे ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए, मैं रोज मेडिटेट करती हूँ सुबह सुबह, मेरा आदत है। सुबह एक बार सोने के बाद ही, सॉरी उठने की तरह उसी टाइम पे, एंड देन रात को सोने से पहले, दिस इज अ रूटीन फॉर मी, कि दैट एवरी डे विदाउट फेल आई गो फॉर दिस। फ्रिक्वेंसी जो है मेरे बीमार पड़ने की इतनी कम है, कि कई बार मैं सौम्या को बोलती हूँ रात को, कि सौम्या यार मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा, तो कल का देखते हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम अप, द सेम टाइम आई एम अप विद ऑल माई एनर्जी, आई एम डूइंग दिस। आप लोग जो मुझे जानते हो, आप तो जानते हो कि आपने बहुत कम देखा होगा कि मैं सेशन में कैमरा ऑन करके नहीं बैठी हूँ। कम से कम कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपनी तबीयत खराब होने के कारण बैठी हूँ, कभी भी नहीं होता ऐसा। वाई? बिकॉज मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग करके, मैंने अपनी एनर्जी को इतना हाई कर रखा है, कि होते ही नहीं है ये सब कॉमन कोल्ड फ्लू सिम्टम्स, ये सब कुछ होते ही नहीं है। This is the kind of energy you create when you consume the high pranic things, high frequency things. So always stay in that. Now this says that moderate food plus mindful blessing. अब कभी कभार जब आपको ऐसा लगता है कि आप खाना थोड़ा सा ऐसा खा रहे हो, कि भाई, हमेशा क्यों हम लोग बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड करके खाओ, कुछ भी खा रहे हो आप, कुछ भी खा रहे हो, ग्रैटिट्यूड के साथ खाओ। आप इस बात, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप माइंडफुल हो कि आप क्या खा रहे हो, आपके अंदर क्या जा रहा है, यू आर माइंडफुल अबाउट दैट। थोड़ा सा लोअर प्राणिक उसका फूड भी रहेगा, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी हाई है, आपने जब उसमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली, तो वो लो एनर्जी वाला जो फूड है वो थोड़ा सा हाई हो गया, तो आपने उसको कंज्यूम कर लिया। तो इस कारण से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, उस मतलब उतना हाई हाई नहीं रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली उतना हाई नहीं रहेगा जब आप अपने हाईएस्ट जोन में रहते हो, और तब अपने हाई प्राणिक फूड को भी आप ग्रैटिट्यूड के साथ खाते हो, उतना हाई नहीं रहेगा। लेकिन कम से कम वो चिप्स का पैकेट जब आप खा रहे हो, आपने सोचा कि ये मेरे पास कैसे आया, या मैं क्या कैसे आया, क्या कौन सा रास्ता तय करके आया, कितने लोगों ने इसको पैक किया होगा, है ना, उसके अंदर वैक्यूम किया होगा, वो आया मेरे सामने, और फिर मैंने उसको क्या किया, उसके अंदर खाना भी अगर है तो कभी कभार, तो उसको अपना ब्लेस करके फिर खाने को खाओ, ताकि आपका जो खाने के अंदर जितना भी कंटेंट है ना, एवरीथिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अब आप एक और बात का आप ध्यान आ रहा है मुझे,
प्लास्टिक में खाना को क्यों मना करते हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए या फिर स्टोर नहीं करना चाहिए, क्यों बोलते हैं? अगर आप देखोगे ना तो प्लास्टिक जो है उसमें कंडक्शन नहीं होता, है ना, वो कंडक्शन नहीं होता, वो रिएक्टिव नहीं होता। तो जब आप, अब उसका प्राणा वैल्यू बहुत कम हो गया ना, प्राणिक वैल्यू उसका कम हो गया। इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन यू आर कीपिंग दैट फूड इन समथिंग कॉल्ड स्टील में अगर आपने रखा है या फिर कांच में रखा होगा, तो ग्लास है ना, जो ग्लास का मटेरियल है, ग्लास इज एक्चुअली मेड ऑफ सिलिका, सिलिका से बनता है और उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तभी कहते हैं कि आपको जो है वो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। चाहे वो बहुत अच्छा फूड हो, आपने उसको हीट कर लिया तो वो क्या हो गया, उसमें लीचिंग हो गई, वो आपका प्राणिक वैल्यू अगेन फूड का कम हो गया, आपने उसमें रख के खाया तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि हमने अगर अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, यहां पर आती है कि कैसे हमारा पेट उसके लिए उत्तरदायित्व है इसका। So always remember that when you want to live a healthy life, you have to work on your pranic energy and you have to watch the factor that what kind of food is going inside your mouth and what kind of thought you are vibrating in. So if we want to conclude the whole thing, so you have to make a conscious choice अपने आप से। कभी कहते हैं ना कि यार मन कर रहा है ये खाने का, लेकिन तब अब मन कर रहा है यानी कि आपको वो थॉट याद है, आपका बर्गर खाने का मन कर रहा है, आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है, वो मन कर रहा है आपका करने का, क्योंकि आपने पहले कभी उसको खाया था और आपको शायद टेस्टी लगा होगा वो खाना, या क्यों, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल था, या आपको लग रहा था कि मेरा फ्रेंड खा रहा है तो मुझे भी खाना है ना, तो वो वाली फीलिंग थी आपके अंदर, तो आपके माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या स्टोर हो गया कि हाँ वो वाली फीलिंग स्टोर होगी। तब आपने क्या करना है, कॉन्शियसली यू हैव टू मेक दिस कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज दैट फूड कि नहीं मुझे वो नहीं खाना। सो दैट वे आप जितना बार, कहते हैं ना, आप लोग बहुत बार बोलते हो कि क्या मैं मेडिटेट नहीं कर पाती, बार बार थॉट्स आते रहते, थॉट्स आते रहते हैं, तो कॉन्शियसली यू हैव टू मूव योर माइंड बैक टू मेडिटेटिंग, यू हैव टू मूव योर माइंड बैक टू ब्रीदिंग। सो इसी तरीके से यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट जितनी बार करोगे, बार बार करके आप जब उसको वापस पुल करके अपनी जगह पे लाओगे, वही तो प्रैक्टिस है मेडिटेशन की। और वही चीज हमारे खाने पे भी अप्लाई करती है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो हुई तो आपका मन करेगा कि मैं जाके ऐसा वाला फूड खाऊं, क्योंकि वही एनर्जी को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे विदाउट नोइंग, यू विदाउट नोइंग दिस दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द लो थिंग्स, आपको अपने आप ही मन करेगा वो खाने का। तब क्या करना है, अपने आप को कॉन्शियसली रोकना है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, क्योंकि इसको खाने के बाद इट इज नॉट गोइंग टू सर्व मी, इट इज ओनली गोइंग टू डिप्लीट माई एनर्जी, इट इज गोइंग टू पुट होल्स इन माई ऑरा, तो मुझे वो नहीं खाना है। तो वो जितनी बार कॉन्शियस एफर्ट्स करोगे, आपका सबकॉन्शियस उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। सो अपने सबकॉन्शियस को अगर अपना हैबिट ही वैसे बनानी है, तो कहते हैं ना कि आप करते रहो, एवरी टाइम यू हैव टू से नो टू योर अल्कोहल, एवरी टाइम यू हैव टू से नो टू द सिगरेट इफ यू आर स्मोकिंग, वट एवर इट इज, शुगर फॉर दैट मैटर, है ना, फ्राइड फूड फॉर दैट मैटर, और एनी प्रेजर्वेटिव वाला फूड, उसको आपको कॉन्शियसली मना करना पड़ेगा। जब आप कॉन्शियसली मना करोगे, तब आपके सबकॉन्शियस में वो फिल्टर होके वो वाला थॉट जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करना। तो सालों पुराना जो थॉट आपके अंदर पड़ा हुआ है कि उसका टेस्ट ऐसा होता है, टेस्ट इज नथिंग बट वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है ना, वो मेमोरी आपका वो हो जाएगा, वो मेमोरी वहां से डिमिनिश होकर नया मेमोरी आ जाएगा कि दिस इज गुड फूड एंड आई हैव टू ईट दिस। तो कॉन्शियस एफर्ट आपको ये करना है। अब इमोशनल अवेयरनेस क्या है, द स्टेट ऑफ माइंड वाइल ईटिंग इज एज क्रूशियल एज द फूड इटसेल्फ इन डिटर्मिनिंग इट्स इम्पैक्ट। सो डे बिफोर येस्टरडे पल्लवी वाज, आज ही शायद पल्लवी पूछ रही थी मुझसे कि प्रिया व्हाट इज दिस एनर्जी, मतलब व्हाई वी हैव टू वॉच आवर एनर्जी वाइल कंज्यूमिंग फूड, और व्हाट इज दैट एक्चुअली। सो एनर्जी का मतलब है जो आपके थॉट्स हैं, आपकी थॉट्स कैसे हैं, आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आप गाना सुन रहे हो और वो गाना बड़ा ही उदासी वाला गाना है और ऐसा गाना रोने धोने वाला गाना है, तो आपका मन क्या हो गया, वो इमोशनल हो गया। इमोशंस कहाँ हो गए, वो रोने धोने के इमोशंस है ना, वो खाने ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और आप जब वो खाना कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वो जो है वो भी एनर्जी है, आपका फूड भी एनर्जी है, वो गाना भी एनर्जी है, तो आपके फूड ने वो वाली लो वाली फ्रीक्वेंसी वाले एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। तो आपने चाहे कितना ही बढ़िया खाना खाया हो, कितना ही फ्रूट खा रहे हो, स्प्राउट्स खा रहे हो, कुछ ही खा रहे हो, लेकिन उसमें एनर्जी क्या डाल दी आपने, रोने धोने की एनर्जी डाल दी। या फिर मान लो मूवी देख रहे हो, कुछ फाइटिंग वाला सीन देख रहे हो, कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक चीज देख रहे हो, वो वाली एनर्जी के साथ आपने फूड को कंज्यूम कर लिया, तो फिर क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर वो आपका प्राणिक वैल्यू में अगेन वो ऑरा में डिप्लीशन हो गया, वहां पर होल बन गया। तो उस होल को हमने नहीं बनाना है, इसलिए जब भी खाना को खा रहे हो, अच्छे से चबा चबा कर खाने को खाओ, खाने के साथ अपना रिलेशन को देखो कि आप वो खाने को क्यों खा रहे हो, खाने को समझ कर खाओ कि क्या खाना, मैं ये क्यों खा रही हूँ, अगर मैं चिप्स का पैकेट खा रही हूँ तो क्यों खा रही हूँ। वही ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाने को ब्लेस करा और खाया। ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस का मतलब ये भी है कि मेरे सामने जो खाना पड़ा हुआ है, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस खाने में है, और मैं खाने को टच करके मैं खाने को खा रही हूँ, और वो खाना मेरे बॉडी में जाकर मेरे को बना रहा है, तो इट मस्ट बी कैरिंग दैट गुड एनर्जी।
अच्छे होके खुश होके खाओ। हम लोगों को हमारे जो गुरु हैं वो बताते हैं कि जब भी मूड ऑफ होता है तब खाना को मत खाओ, डेफर दैट। आपको रोना आ रहा है, उदासी हो रही है, तो मत खाओ खाने को, थोड़ा सा बाद में खाओ, अब जब आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी तब खाओ। वरना क्या होता है, जब हम रोने में, आपने देखा होगा ना, जब हम रोने लग पड़ते हैं, कोई आके नहीं नहीं पानी पिलाता, नहीं, कूल डाउन, वो गलत है। तो क्योंकि आपने वो पानी को कैसे कंज्यूम किया, वो आपने रोने वाली एनर्जी में कंज्यूम किया, आपने लो एनर्जी में कंज्यूम किया। हालांकि पानी की एनर्जी बहुत हाई है, पर चूंकि आपने लो एनर्जी में उसको कंज्यूम किया, तो उसकी एनर्जी आपने क्या कर दी, डाउन कर दी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी इमोशनली अवेयर कि आप जो खाना खा रहे हैं वो उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी एनर्जी को हाई करके फिर खाओ। कॉन्शियसली याद दिलवाना पड़ेगा, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता ग्रैटिट्यूड करना, पर अपने आप को बार बार करके लेकर आओ ना, जैसे कि लेके आते हैं, जैसे हम लोग मेडिटेशन में दिमाग इधर उधर चला जाता है, लेके आते हैं, तो कॉन्शियसली पुट योर एफर्ट टू प्रायोरिटाइज योर ईटिंग। ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना, तो प्रायोरिटाइज योर ईटिंग, दैट आई whenever I'll be eating, I'll be eating with good energy, with the vibration of gratitude, then that food is going to be, आपका आर्मर बनाएगा, आपकी स्ट्रॉन्ग सेना बनाएगा, वो फूड ही करेगा आपका। देन when vibrationally आपकी अलाइनमेंट कैसी है, when high frequency food meets high frequency emotion, you sync with abundance and healing। आपकी हीलिंग को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप हाई एनर्जी में, आप ग्रैटिट्यूड मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप हर बात में, हर किसी को भी, कोई भी किसी ने कुछ भी किया हो, आप उसको माफ कर देते हो। आप औरों के शूज में अपने आप को रखकर देखते हो कि मेरी जगह उस इंसान ने अगर कोई गलती कर भी दी है, कोई बात नहीं, इंसान ही है, उससे हो गई है, वो मेरा ही रूप है ना। कि अगर हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि देर इज नो वन एल्स, थर्ड पर्सन तो कोई है ही नहीं, इट इज ऑलवेज यू एंड योर यूनिवर्स। हर कोई इंसान, किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, रिवॉर्ड दिया है, तो वो भी यूनिवर्स है, किसी ने कुछ बुरा किया है तो वो भी भगवान है। तो आपने जब इस बात को समझा, तो आपने क्या किया कि हर बंदे को आपने माफ किया, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहते हो आप। उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई है। और इस हाई वाइब्रेशन में जब आपने शुगर को कम कंज्यूम किया, आपने प्रेजर्वेटिव्स को कम खाया, आपने हाई प्राणिक वैल्यू वाले फूड यानी कि फ्रूट्स यानी कि वेजिटेबल्स, इनको अच्छे से कंज्यूम किया, तो आप अबंडेंस ऐसे ही आ जाएगी आपके पास। लाइफ का कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एरिया वहां पर लैग रहेगा। ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस यू विल बी floating in abundance in all the areas, your health, your wealth, your career, your relationships, everything will be wonderful, because your energy is aligned with prana, your energy is aligned with high pranic things. So this is very important for us to know। और हम लोग ब्रेन टू बॉडी में इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एक्चुअली हमारा जो एग्जिस्टेंस ही ये है कि वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द होलिस्टिक थिंग। be in the fasting course or in other all our courses, we are actually giving you holistic thing. We are working on your pate, your gut as well as your mind. That is why mind gym is the most important thing, and then we are looking after your gut, that you consume, how you develop wonderful relationship with your food. So this is how you will be aligned with high frequency, and that is how you will be able to attract abundance in your life, right? So this is how much, and I am sure that you now, you guys know and very aware of the fact कि कौन सा फूड जो है कितनी एनर्जी का है, और हम लोगों को कैसे अपने एनर्जीज को हाई रखना है, हायर प्राणा में कैसे हम लोगों के रहना है। क्या करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा हाई प्राणिक वैल्यू वाले फूड को कंज्यूम करो। नंबर टू, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग, है ना। कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करो ताकि आपकी एनर्जी हाई रहे, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए। आप ग्रैटिट्यूड और लव की प्रैक्टिस को जरूर करो, हर किसी चीज में प्यार ढूंढो, हर किसी चीज के शुक्राना करो, धरती से लेकर आकाश तक और पूरा आकाश से लेकर धरती तक, जितनी भी चीज हैं उसमें आप लोग प्यार ढूंढो। फिर देखो कैसे आपकी प्राणिक वैल्यू इंक्रीज होती है, आपका आर्मर जो है पूरी तरह से स्ट्रांग होता है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी बीमारी आएगी, कुछ भी ऐसा आया, कुछ भी ऐसा हुआ, एकदम आपसे दूर चला जाएगा, आपके आपको छू ही नहीं पाएगा, अंदर आके आपको अटैक कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। एंड सौम्या, यू वांट टू से समथिंग? No, Didi. If anybody has any questions, we will take. And if not, we want to open the stage to our beautiful, one of our